نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے آپ کے درمیان۔ اس پروگرام میں آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، دلچسپ سوالات ہوں گے، فقہی پہیلیاں ہوگی، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کے اندر ایک ٹاپک ہوا کرے گا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھر کے ماحول کو کیسے خوشگوار بنائیں۔ گھر کے ماحول کو ناظرین خوشگوار بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عوام کے درمیان جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان کے کمنٹس لیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں ایسی کہ جس سے بندہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر سکتا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بندہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، پسندیدہ بندہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس آیت کے آگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے۔ اب پسندیدہ بننے کی وجہ اس سے پہلے ارشاد فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور نیکی کے کاموں کا حکم دیا کریں۔ اور ایک بہت اہم چیز ناظرین کہ جو ہمارے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اپنے گھر کا ماحول اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کیجیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجیے۔ جب گھر کے چھوٹے اس چیز کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ با اخلاق ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ناظرین، اسی ٹاپک کو ہم لیے چلتے ہیں آپ کے درمیان۔ آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان، نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، نیکی کا پیغام سب کے لیے آئے جلانے عمل کے دیے، آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان۔ اچھا، ٹاپک ہمارا گھر کے ماحول کو خوشگوار کیسے بنائیں، اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیں گے؟ سر، ماحول تو بس یہ کہ آپس میں مل جل کے رہیں، اس سے ہی بات اس سے چلتی ہے، اس سے اتفاق ہونا چاہیے بالکل، ہر بھائیوں کے اندر۔ یہ ایک ساتھ جو بالکل اس میں سب بھائی وغیرہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ، جب سب ساتھ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اتفاق میں ویسے بھی جو ہے وہ برکت ہے۔ اور ساتھ ہے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ شیر خدا کن کا لگا ہوا ہے؟ سورہ خدا سے تنا۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ کون سی ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے بندے کے گھر کا ماحول اچھا ہو؟ گھر کے ماحول کے حساب سے انسان خود ہے بہتر رہنا اچھا ہے، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دے سکتا ہے، اپنے اندر اچھی تربیت پیدا کرنا، بچوں کو اچھا ماحول دینا، بچے کیا کرتے ہیں، بیوی ہو گئی، سب کو ایک لیول کے حساب سے لے کے چلنا چاہیے میرے حساب سے۔ ماں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، اور بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، سب کو اپنے حساب سے لیول کے حساب سے لے چلنا چاہیے۔ اچھا، کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرق کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ لاڈلا ہے، یہ کم لاڈلا ہے، تو اس سے بھی گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ بچوں کی سوچ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ بچہ ہوتا ہے کہ شرارتی ہوتا ہے، کچھ اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ماں کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، اس لیول کے اس کے حساب چلنا چاہیے، کیونکہ ایک شرارتی ہوتا ہے تو اس کو اس حساب سے لے کر چلنا چاہیے، جو ٹھنڈا بچہ ہے تو اس کے اس حساب سے چلنا چاہیے۔ چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین سے کہ کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے؟ پہلے والدین کی تو یہی تربیت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو تربیت کہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کیا ہے۔ آج کل موبائل ہاتھ میں دے دیے تو اس وجہ سے ماحول خراب زیادہ تر موبائل نے ہی کر دیے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے موبائل سے دور رکھیں، باقی اب اصلاح کریں، اسلامی کتابوں سے باقی دین سکھائیں، پہلے کے صحابہ کے نام، کیونکہ ہمارے یہاں صحابہ کے نام کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے، اولیاء اعظام کے نام، ان کے صحابہ کے طریقے طور طریقے پہ چلائیں تو گھر آپ کا خوشگوار رہے گا، یہی ہے بس انشاءاللہ۔ اچھا، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے کسی 4 کے نام بتا دیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی خیر خدا۔ بہت شکریہ۔ گھر کے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے انسان؟ یہ دینی تعلیم دینی چاہیے۔ گھر والوں کو، بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ
जन्नत उल बकी कहाँ पर है? जन्नतुल बकी मदीने में मेरा ख्याल। मदीने पाक में। तो क्या लगा रहे हैं? मैंने मदीने सुना था, माशाल्लाह। वो अचानक आया ना इसलिए। कि अचानक आए। अच्छा, ये भी एक जो है ना प्रेशर होता है कि अचानक आए हो। अच्छा बताएं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सबसे पहली जोजा का नाम बताएं। आयशा है मेरा ख्याल से, सबसे पहली नहीं है वो, इसका नहीं मालूम। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारा टॉपिक है घर का माहौल खुशगवार कैसे बनाएं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दरगुजर से। दरगुजर से, यानी अगर कोई बुरा भला कह रहा है घर में या कुछ बड़े डांट रहे हैं तो दरगुजर करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी देर की खामोशी से सब मामला बेहतर हो जाते हैं। तो बहुत अहम बात है, थोड़ी देर की खामोशी से सारे मामला अच्छे हो जाते हैं, ये भी अच्छा है। टॉपिक है हमारा घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं। दावत इस्लामी समझाती है कि बड़े का माहौल अच्छा हो, ऑटोमेटिक बच्चे अच्छे हो जाएंगे। हम बड़े अच्छे होंगे तो छोटे अच्छे होंगे ना। ये तोहफा हमारी तरफ से। टॉपिक है घर का माहौल खुशगवार कैसे बनाएं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? घर का माहौल इस तरीके से कि अपना मिजाज ले जा तो सही रखें। टॉपिक है घर के माहौल को अच्छा कैसे बनाएं। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें अल्लाह की, अल्लाह पाक सब बरकतें देगा उसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं। घर चलाओ, घर में खुशहाली के लिए सबसे मोहब्बत करो। तजर्बे के लिहाज से बहुत अच्छी बात की है कि जो है ना वो परेशानियां दूर करना घर वालों से। अब घर वालों को इरिटेट करोगे अपनी हरकतों से, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करोगे तो घर का माहौल तो ख़राब होगा। चले माशाल्लाह। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारा टॉपिक घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं ये भी जारी व सारी है। लोगों से दिलचस्प और इल्मी सवालात जवाबात का सिलसिला भी जारी व सारी है। फिल वक्त नमाज मगरिब का वक्त है, नमाज की तैयारी के लिए जा रहे हैं, नमाज अदा करनी है। इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा आएंगे और लोगों से बात करेंगे घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाया जाए, ये हमारा टॉपिक होगा। इस पर मजीद बात करेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। टॉपिक है हमारा कि घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? घर के माहौल को खुशगवार तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमें दीन इस्लाम के ऊपर फॉलो करते हुए हम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह घर, दीन, दुनिया, काम, कारोबार, इज्जत सब जो है वो हमारा बेहतर होता रहेगा। अल्लाह के हुक्म से झूठ गिबत इनसे बचाएं। और खुसूसन मैं एक माहौल से बचने के लिए एक मैसेज ये दूंगा कि मोबाइल जो है ना, इससे हमें बचना है। हमें बच्चों को खास तौर पर इस मोबाइल से बचाना है तो इंशाल्लाह हम घर की बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, बहुत सी गुनाहों से बच सकते हैं, बहुत सी बेहयाई से बच सकते हैं और बहुत से बुरे कामों से बच सकते हैं। तो बस ये है कि मैं चाहूँगा कि माँ बाप जो है खास तौर पर ये बच्चों को मोबाइलों से थोड़ा सा अवॉइड जब करें। तक बच्चा समझदार अच्छे बुरे की उसको पहचान नहीं है, जब तक अच्छे मीडिया, जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसका अच्छा यूज़ भी है और गलत यूज़ भी है। ऐसे ही है। तो बच्चों को तो नहीं पता है ना कि यार ये गलत यूज है कि अच्छा यूज है कि, तो बस मैं पहले तो पॉइंट ही करूंगा कि इस फितने से बच जाए तो इंशाल्लाह फिर घर का माहौल बहुत अच्छा है आजकल के दौर के हिसाब से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, इस वक्त हम कराची के एक मार्केट में हैं और अब हम मुकाबला करवाने लगे हैं हमारे दो भाइयों के दरमियान। और मुकाबला ये होगा, टास्क इनका ये है कि इनको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम सुनाने हैं बारी बारी। एक इस्लामी भाई सुना दे तो अगले ने अगर नहीं सुनाया तो 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक जो है ना पहले वाले इस्लामी भाई जीत जाएंगे। पहला नाम मैं ले देता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत बिलाल, बिलाल नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 5 4 3 2 1। माशाल्लाह, हमारे ये वाले भाई जो है ना वो जीत गए। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। असल में भाईजान, जैसा आप अपने आप को अच्छा बनाएं, खुद ब खुद घर का माहौल अच्छा बन जाएगा। दूसरी है कि आप तरबियत अच्छी करें, नमाजी बनाएं बच्चों को, अपने ख़वातीन को कोशिश करें बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और दीन की तरफ ज़्यादा माइल करें तो खुद ब खुद सारा माहौल आपका अच्छा हो जाएगा। जब आप दीन की तरफ जाएंगे और दुनिया से कटेंगे
तो माहौल अच्छा होगा। दुनिया तो तमाशा है, खेल है, अगर हम समझें तो। बाकी है कि जब हम इस तरफ जाएंगे, नमाज के लिए अपने घर में पाबंदी करवाएंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद वो माहौल भी अच्छा होता जाएगा। बाकी हिदायत रब्बुल आलमीन के हाथ में, वो दे, आपको भी दे, हमें भी दे, सबको अल्लाह हिदायत दे। हिदायत की ज़रूरत है। कलीमुल्लाह किन का लक़ब है? कलीमुल्लाह तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ है ना। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अंकल। भाईजान घर का माहौल तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोबाइल ने जो है ना पूरा निज़ाम डिस्टर्ब किया हुआ है। अब जब हमारा ज़माना था तो हम लोग घर में हमने सारी ज़िंदगी गुजारी, हमने टीवी नहीं रखा है। अब माशाल्लाह फिर मेरे बेटे जो थे वो बड़े हो गए, तो एक एक करके तीनों ने मोबाइल लिया, उसके साथ मैंने भी लिया है, तो माहौल तो सारा बिगड़ गया ना। तो जाहिर सी बात है माहौल में तो ये बड़ों के हाथ में भी है, लेकिन नहीं दो ये बच्चों के दोस्तों के जॉइंट जो है ना, अगर वो उसके बच्चे हैं, उसका बैकग्राउंड जो है ना दोस्तों के साथ सही नहीं है, तो ये माहौल बाप क्या बनाएगा। यानी मोबाइल लेके कुरान मजीद दे दो बच्चे के हाथ। वो तो दे दो, लेकिन उसके यार दोस्त कौन से हैं, जाहिर सी बात है इसको जो है ना, अगर वो ज़माना नहीं रहा, अगर माँ बाप के बड़ों की बात मानेंगे, फिर तो इसका राह सीधा हो जाएगा। जब तक वो बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो ये चीज़, क्योंकि उसको तो अपनी इतनी शऊर तो उनको नहीं है ना, बच्चों को क्या शऊर है। ये 12-14 साल से लेके फिर ये 28-30 साल तक बच्चे को कोई शऊर तो पक्का नहीं होता। तो बस कोशिश तो करनी चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम अच्छा, कुरान पाक के पारे कितने हैं ज़रा ये बताएं ना। अरे पारे तो 30 है, पूरी दुनिया को पता है भाई। ये हम ऐसी खूबसूरती के लिए कुछ प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ। अच्छा, इसी तरह जो है ना प्यारे आका अलैहिस्सलाम के 2 नवासों के नाम बताएं। हजरत हसन और हसन हुसैन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कॉन्फिडेंस से जवाब दो। और भी जी। सवाल जवाब। अच्छा, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ये सूरत बकरा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए, इतर शरीफ। आपके दरमिया आए हम, आपके दरमिया। घर के माहौल को जो है ना वो खुशगवार कैसे बनाया जा सके? कारोबार होगा तो खुशगवार होगा। ये भी अच्छी है। हाँ, कारोबार है नहीं होगा, है। पैसा होगा, कारोबार होगा तो आदमी जिंदा क्या नाम है जवान रहता है। अच्छा, ये नई चीज सीख रहा हूँ। हाँ ना भाई, कारोबार होगा तो आदमी जवान रहता है ना, अगर कारोबार नहीं होगा तो आदमी बीमार हो जाएगा। ये भी अच्छा है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी घर का हाँ माहौल जो है वो हाँ, एक वजह इसकी पैसा भी है, यानी पैसा होगा तो घर का माहौल ऑटोमेटिक जो है ना ऑटोमेटिक खुशगवार हो जाएगा। माहौल को जो है ना वो अच्छा खुशगवार कैसे बनाया जा सके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये बड़ों पे मुयसर है और अमन अमान पे मुयसर है। जो अमन अमान हो, तालीम हो और पढ़ा लिखा हो, तो इस पे मुयसर है। ये बताएं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की किसी एक वाइफ का, एलिया का नाम बताएं। बीबी आशिया। अरे माशाल्लाह। हाँ, बीबी आशिया। आपके दरमिया आए हम, आपके दरमिया। टॉपिक है हमारा घर के माहौल को खुशगवार अच्छा कैसे बनाएं, तो इस हवाले से हमारी आवाम को आप क्या राय देंगे? सबसे पहले मेरे बहन भाइयों से मेरी ये इल्तिजा है कि आपके घर का माहौल उसी सूरत में बेहतर हो सकता है जब आपके घर में दीन का नूर हो। अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, उठने बैठने का अदब सिखाएं, छोटे बड़ों की तमीज़ दें, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार की हदीस मुबारका से उन्हें आगाह किया जाए। आपके दीन में इतनी नरमी, इतनी आसानियाँ हैं, उसके तवस्सुस से, उसकी बरकतों से आपके घर में नूर आएगा और फिर इंशाल्लाह आपके घर में माहौल ऐसा बनेगा कि सुभान अल्लाह। कोशिश किया करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को ताकीद करें, बच्चों को उठने बैठने का बताएं, बच्चों को खाने पीने में कौन सी दुआ पहले पढ़नी, कौन सी बात में, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप रब्बे करीम का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसने मेरा शुक्र अदा किया मैं उसे कमी नहीं आने दूंगा। ऐसे ही लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे और ज़्यादा दूंगा। और हम जिसे चाहे बेहिसाब दे दें, वो तो कोई कमी नहीं है मेरे रब्बे करीम के ख़जाने में। और सबसे बड़ी मेहरबानी तो ये है कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ा हमारा फ़ख्र है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुन्नत को अपनाते हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को अपनाते हैं। सही अल्हम्दुलिल्लाह। और सहाबा कराम का एहतराम और इज़्ज़त
हमारा सर का ताज है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाब हुजूर, नज्म है और नाव है तिरत रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी। हम उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, साहबा के भी गुलाम हैं, उनके गुलामों के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम। अहले बैत तो बहुत ऊंचा मर्तबा है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी एक चचा जान का नाम बताएं। हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर हमजा सर, आपका रोज़ा मदीना शरीफ में है, बिल्कुल जबल ओहद के दामन में। जबल ओहद के दामन में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आमीन। टॉपिक हमारा घर के माहौल को अच्छा कैसे बनाएं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? सर, घर के मामलात इंसान के अपने हाथ में होते हैं। माँ बाप की जो आजकल जो बच्चे हैं माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप से बदतमीजी है और फिर दीन से दूरी भी है हमारी, नमाज़ें छोड़ते हैं, हमारे मामलात ख़राब है, सारी चीज़ें ये सब चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में। और इसके बाद फिर हमारे इखलाक बहुत ज़रूरी है। बाज़ जगह हमें जो है अपने पेरेंट्स के साथ नरमी से बात करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा वो हम सही होते हैं, माँ बाप बाज़ दफ़ा जो है गुस्से की हालत में सही में भी जो है हमें डांट देते हैं, सुन लेनी चाहिए इंसान को। इसके अलावा फिर बहन भाई हैं, बहन भाइयों से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डील करनी चाहिए। लेन देन है, कोई अगर बहन ने कोई चीज़ मंगाई है उसको ला के दे दो, या भाई को कोई चीज़ पसंद आ रही है उसको दे दो, अच्छी चीज़ है वो अपने भाई बहनों को दे दो, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, घर अच्छा चले। अच्छा हो जाएगा। बाकी आजकल जो पैसों की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों का जो हाल है वैसे ही घरों के हाल बुरे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो बंदा अवॉइड कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खुलफाए राशिदीन के नाम बता सकते हैं हम, 4 खलीफों के नाम? अबू बकर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। अरे माशाल्लाह। चलें, फरिश्तों के सरदार कौन से हैं, कौन है? हज़रत इब्राहीम। फरिश्तों के फरिश्ते वही भी लेकर आया करते थे। जहन से निकल रहा बहुत अच्छा। जीम से नाम शुरू होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अच्छे जवाब दिया आपने। ये ले हज़रत, छोटा सा तोहफा आपके लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाक। आमीन आमीन। घर के माहौल को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? आजकल का जो दौर है ना, बच्चों जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, इस तरह के चीज़ चैनल वगैरह बच्चा देखता है जिसमें क़ुव्वत समात बच्चों की वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ के पे ऊपर बच्चों को पाबंदी लगाई जाए, बच्चे चिल्ला कर बात ना करें, बच्चे तरीके से बात करेंगे, उनकी माइंड बच्चों के साथ तरीके से बात करेंगी तो घर का माहौल अच्छा होगा। गालम गलोच आजकल बहुत आम हो गई है, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, माहौल अच्छा हो जाएगा। घर पे तो गालम गलोच करनी नहीं चाहिए ना, अगर मियाँ बीवी करेंगे, लेकिन हो रही है, यानी मियाँ बीवी गालम गलोच करेंगे, बच्चा सीखेगा। हाँ, सोशल मीडिया से ये चीज़ें आम हो रही है और हो रही हैं घर पे, तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। फिर इसके अलावा नमाज की पाबंदी सबसे पहले करनी चाहिए, माहौल अच्छा हो जाएगा। वो कौन से ताबी हैं, बल्कि ताबीन के सरदार हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जिनसे बहुत मोहब्बत थी? हज़रत अवैस करनी। हज़रत अवैस करनी, आपके हम नाम माशाल्लाह। अच्छा, मौज़िन रसूल, प्यारे आका के मौज़िन किनको कहा जाता है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है आपके दरमियान और आज हमारा मौजू था कि घर के माहौल को खुशगवार कैसे बनाएं। हमने लोगों से जा जाकर इस मुतालिक बातें भी की, हर किसी ने अपनी राय का इजहार किया कि ये काम करें तो घर का माहौल जो है वो अच्छा होगा। हमने लोगों से दीनी सवालात भी किए और जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनको तोहफ़े भी तकसीम किए। अब हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुंच चुका है। हम दोबारा अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां।